नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने आज भालकी में 6 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। बीदर में सैनिक स्कूल की मंजूरी दिलाने पर हैदराबाद कर्नाटका शिक्षा संस्थान के अधिकारियों और सदस्यों ने मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात कर किया सम्मान। बीजेपी राम मंदिर में धमाका कर मुस्लिमों पर लगा देगी आरोप। कर्नाटका के कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल का आरोप, मचा बवाल। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कावेरी विवाद के चलते जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस को बताया डीएमके की बी टीम। अब समाचार विस्तार से। यात्री सुरक्षा को देखते हुए आज भालकी बस डिपो में 6 नई बसें जोड़ी गई हैं। भालकी से बेंगलुरु सहित अन्य जिलों के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए भालकी बस स्टेशन पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने आज भालकी में 6 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। 2 नई स्लीपर बसें प्रतिदिन भालकी से बेंगलुरु तक यात्रा करेंगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता, छात्र, व्यापारी इसका सदुपयोग करे। बीदर में बीदर एजुकेशनल सोसाइटी को प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल की मंजूरी दिलाने पर हैदराबाद कर्नाटका शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष भीमाशंकर सी बिलगुंडी और दूसरों ने केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात की और उन्हें शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए भगवंत खुबा और सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और एक प्रतिष्ठित सैन्य स्कूल स्थापित करने के सरकार के फैसले पर बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री भगवंत खुबा ने संबोधित किया और सैनिक स्कूलों के संबंध में बात की और सभी का आभार व्यक्त किया। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिल्ಲೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವುದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನವರಾದಂಥ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅಣ್ಣವರು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು 23 ಶಾಲೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬೀದರ್ದಲ್ಲಾಗಿದೆ। ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳು। ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ। ಆ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗೇನದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೀದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗದ ಅಂತಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಈ ಏರಿಯಾದವ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲುಮಿನಿ ಇದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲುಮಿನಿ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದನ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆರಂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಂದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ, ಒಂದು ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೂ ಏನದ ಅಂದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಇಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2.5 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಏನದ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಬಾರು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನದಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. साहसी राजनीतिज्ञ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल की पत्नी श्रीमती शारदा वीरेंद्र पाटिल के निधन की खबर सुनकर कर्नाटक के फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मंत्री ईश्वर खंड्रे और दूसरे नेताओं ने दुख व्यक्त किया और उनके परिवार को सांत्वना दी और प्रार्थना की कि भगवान दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी राम मंदिर में धमाका करवा दे और फिर इसका आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा दे। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों को हासिल करने की खातिर ऐसा कर सकती है। उनके इस बयान पर कर्नाटक की राजनीति गर्मा सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक बीजेपी के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता को कहते हुए सुना जा सकता है, इस बात की संभावना है कि मोदी को अपना अगला लोकसभा चुनाव जितवाने के लिए बीजेपी राम मंदिर पर बमबारी करेगी, फिर इसका दोष मुसलमानों पर मढ़ा जाएगा और हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि पाटिल ने सच में ऐसा कहा है या नहीं। ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ विवाद के समाधान के रूप में कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय के निर्माण और संकट के समाधान के लिए जल बंटवारे के फॉर्मूले के महत्व को दोहराया। बता दें कि तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के विरोध में भाजपा और जेडीएस द्वारा समर्थित किसानों और कन्नड़ संगठनों द्वारा बुलाए गए बेंगलुरु बंद का मंगलवार को आंशिक असर देखने को मिला। हालांकि अधिकतर सार्वजनिक सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं, वहीं कुछ लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा और जेडीएस कावेरी विवाद पर राजनीति कर रहे हैं। वे राज्य के लोगों की नहीं बल्कि राजनीति के लिए मामले को बढ़ा रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में बंद में भाग लेने वाले किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं की कथित हिरासत के लिए मंगलवार को राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों और किसानों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और तमिलनाडु में कावेरी जल का प्रवाह रोका जाना चाहिए। यह कितना आश्चर्य है। एक तरफ कांग्रेस नेता जिन्होंने पहले मेकेदातु के लिए मार्च किया था, उन्होंने उन किसानों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है जो आज सड़कों पर कावेरी नदी के लिए लड़ रहे थे। दशहरा हाथियों का दूसरा जत्था सोमवार को मैसूर पहुंचा। सभी अभिमन्यु और 8 हाथियों की टीम में शामिल हो गए। अभिमन्यु की अगुवाई में हाथियों का पहला दल 1 सितंबर को मैसूर महल पहुंचा था। रोहित, हिरण्य, लक्ष्मी, प्रशांत, सुग्रीव अपने महावतों और कावड़ियों के साथ जंगल शिविरों से अलग अलग ट्रकों में मैसूर पहुंचे। रोहित 21 वर्ष और हिरण्य 46 वर्ष को बंदीपुर टाइगर रिजर्व में रामपुर शिविर से, जबकि लक्ष्मी 52 वर्ष को नागरहोले टाइगर रिजर्व से में डोडाहरवे शिविर से लाया गया है। ये तीनों हाथी पहली बार मैसूर दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रशांत 50 वर्ष और सुग्रीव 41 ने पहले उत्सव में भाग लिया था। कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया है, जिस पर कई किसानों, कई कन्नड़ समर्थक संगठनों और मजदूर यूनियनों ने 26 सितंबर को बेंगलुरु में बंद बुलाया है। किसानों की कर्नाटक जल संरक्षण समिति किसान नेता कुरबरू शांतकुमार ने बंद का ऐलान किया। बंद का राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने भी समर्थन किया। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान किया गया है। संगठनों का कहना है कि मानसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? प्रदर्शनकारियों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वायर में पहले ही पानी का स्टोरेज लेवल कम है और कावेरी नदी ही बेंगलुरु में
पीने और मंड्या में खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। CWMA को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को लागू करने को सौंपा गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों इस पर विवाद हो रहा है, कौन कौन इसका विरोध कर रहा है और कब और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई, इन सारे सवालों के जवाब की यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के कदबा तालुके में एक मस्जिद परिसर में प्रवेश करने और जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की यह घटना बताई गई है कि आरोपियों की पहचान पुत्तूर के बिलीनेले गांव के कीर्तन और मंगलूर के केकम्बा के सचिन के रूप में की गई है। मोटरसाइकिल से आए आरोपी ने कथित तौर पर रविवार रात मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया और नारे लगाए। शोर सुनकर बाहर आए मस्जिद के धर्मगुरु को देखकर वे वहां से चले गए। यह घटना मस्जिद में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने आज भालकी में 6 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। बीदर में सैनिक स्कूल की मंजूरी दिलाने पर हैदराबाद कर्नाटका शिक्षा संस्थान के अधिकारियों और सदस्यों ने मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात कर किया सम्मान। बीजेपी राम मंदिर में धमाका कर मुस्लिमों पर लगा देगी आरोप। कर्नाटका के कांग्रेस विधायक BR पाटिल का आरोप, मचा बवाल। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कावेरी विवाद के चलते जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस को बताया DMK की बी टीम। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।